Hello students, welcome to IBPS Guide YouTube channel. Today we will discuss triple fillers and sentence rearrangement, new pattern of triple fillers and new pattern of sentence rearrangement for IBPS exams. SBI, the exams of SBI is over, and I hope the paper definitely it will be not so bad for you, because the examination in the question paper was not so tough, specifically English. So let's start for our preparation for IBPS एग्जाम्स. तो आज हम करेंगे डिस्कस IBPS एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस विच आर द ट्रिपल फिलर्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. ट्रिपल फिलर्स मीन्स दैट इज अ सिंपल क्लोज गैप completion, but it will we get three blanks and we get five options, and among them we have to choose the pair of words. So let's start our class, let's start our session. Here is our first question at first slide. That is the question number 1, direction 1 to 5. In each question below, a paragraph is given containing 3 blanks. One paragraph and containing 3 blanks. 6 words are given after the paragraph. We get 6 words, A, B, C, D, E and F are given after the paragraph. Choose the correct combination of the words from options which can fit in the blanks correctly. सो ए बी सी डी ई एफ जो है इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस को ढूंढना होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हमें ढूंढना है टू फिल दिस पैराग्राफ. चलो एक बार पहले पढ़ के देखते हैं. दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्पेसिफिकली मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एंड देन वी पुट द वर्ड्स. बट इसमें थोड़ा सा ग्रामर भी हम ऐड करेंगे, ग्रामेटिकली भी हम इसको चेक कर सकते हैं. तो इसको कैसे होगा एक बार डिस्कस करें. After holding itself back on 3 occasions, the World Health Organization has dashed the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo, a public health emergency of international concern. The dash in Congo, officially declared on August 1, 2018, has killed nearly 1,700 people and made more than 2,500 people ill, while cases in other areas are dash. Beni is a new hotspot. The announcement of the health emergency comes amid renewed concern the virus could spread to other countries. So, after holding itself back on 3 occasions, the World Health Organization has. After has, we know that we have to put third form of the verb. So, that's mean third form इसमें किस में है, देखो declared में है and proclaimed में है. सो अनाउंस में भी नहीं है, रिड्यूसिंग भी नहीं होगा, आउटब्रोकन अगर होता तो हम सोच सकते थे, क्योंकि हैज के साथ ऑलवेज हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है. तो दैट्स मीन फर्स्ट जो गैप हमारे पास है, फर्स्ट गैप में आइदर डिक्लेयर्ड होगा नहीं तो प्रोक्लेम्ड होगा, बट रिड्यूसिंग, अनाउंस एंड आउटब्रेक इट विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन. So, after holding itself back on 3 occasions, the World Health Organization has dashed the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo, a public health emergency of international concern. Ebola disease, Ebola virus, or specifically African people are badly affected by Ebola virus, and it is definitely a very fatal disease. So, after holding itself back on 3 occasions, the World Health Organization has. So first option we have to take, that is हमारे पास जो first option है A, B and D. तो A, B and D के साथ हम चलते हैं. A option पे है declared. So organizations has declared the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern. बी ऑप्शन पे है क्या, आउटब्रेक. देखो, द आउटब्रेक इन कॉन्गो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन August 1, 2018 हैज किल्ड नियरली 1,700 पीपल एंड मेड मोर देन 2,500 पीपल इल. सो आउटब्रेक कब हम यूज करते हैं, जब एपिडेमिक हो जाते हैं, ऐसा कोई डिजीज जो पब्लिक के बीच में स्प्रेडेड हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट लॉट ऑफ पीपल वर डाइड, तो देन इट इज कॉल्ड आउटब्रेक या आउटब्रेक. सो द आउटब्रेक इन कॉन्गो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड August 1, 2018 हैज किल्ड नियरली 1,700 पीपल एंड मेड मोर देन 2,500 पीपल इल. इतने लोग मर गए थे एंड इतने लोग इल भी थे. वाइल केसेस इन अदर एरियाज आर डैश. डी ऑप्शन पे हमारे पास है क्या, रिड्यूसिंग. बेनी इज न्यू हॉटस्पॉट. तो एक तरफ इतनी सारी लोग का डेथ हो गया था, एक तरफ लोग रिड्यूस्ड हुआ था. द अनाउंसमेंट ऑफ द हेल्थ इमरजेंसी कम्स अमिड रिन्यूड कंसर्न दैट द वायरस कुड स्प्रेड टू अदर कंट्रीज. सो इट इज क्लियर टू अस, ए ऑप्शन, आई मीन टू से
आइदर ए और ई, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट जो गैप हमारे पास है इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आइदर डिक्लेयर्ड और प्रोक्लेम्ड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन ई के साथ हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियर टू अस, आंसर विल बी ए, दैट इज ए, बी एंड डी, दैट इज डिक्लेयर्ड, आउटब्रेक एंड reducing. So after holding itself back on 3 occasions, the World Health Organization has declared the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern. The outbreak in Congo, officially declared on August 1st, 2018, has killed nearly 1,700 people and made more than 2,500 people ill, while cases in other areas are reducing. कम हो रहा था. Many in the new hotspot, the announcement of the health emergency comes amid renewed concerns that the virus could spread to other countries. So these are the answer will be option A, that is A, B and D. ये जो ट्रिपल फिलर्स है, माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू, दिस ट्रिपल फिलर्स वी हैव टू मेक इन अ वेरी ट्रिकी मैनर. मतलब इसमें ना बहुत स्मार्ट वर्क करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इसमें 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा एंड वी कैन टेक मार्क्स इजिली. जैसे कि देखो इसमें, जैसे मैंने पहले ही बताई थी, जो हैज है तो हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो सॉरी थर्ड फॉर्म होना चाहिए. तो जस्ट ऑप्शन पे देखो जो ईडी फॉर्म कौन सी में है, डिक्लेयर्ड में था और प्रोक्लेम्ड में था. तो प्रोक्लेम्ड ई से शुरू हो रहा है. देखो हमारे ऑप्शंस पे ई वाली कोई ऑप्शन है ही नहीं. सो अगर हमने ना भी देखे तभी भी ए ही आंसर होगा. सो कुछ क्वेश्चंस तो हम ऐसे ट्रिक लगा के कर ही सकते हैं. मतलब एकदम से ही जो इट शुड बी वेरी मच डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं. जस्ट वी हैव टू use our skill, we have to be a very smart work, have to do very smart work. चलो let's move to question number 2. Question number 2 हमारे पास है, it is understood that dash the BCCI's initiative to get rid of howlers, it will not be able to use the highly dash Hawkeye and ultra age, a must for DRS in international cricket. Karim dash non-committal when asked if the technology will used for LBW decision. तो it is understood that, ये understood ही था, that एक ऐसे वर्ड है, that is the connectors. that के बाद ना बेसिकली एक्सप्लेनेशन या कोई रिजल्ट ऐसा देना होता है या इफेक्ट ऐसा कुछ देना होता है. सो इट इज अंडरस्टूड दैट हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट डिस्पाइट. ए ऑप्शन पे है ए, बी एंड डी. सो ए, बी, डी में है, देखो फर्स्ट में है डिस्पाइट, एक्सपेंसिव, और डी पे है क्या, रिमेंड. तो इट इज अंडरस्टूड दैट डिस्पाइट द बीसीसीज इनिशिएटिव टू गेट रीड ऑफ हाउलर्स. और आगे जो ऑप्शन हमारे पास है बी का, एक्सपेंसिव द बीसीसीआईज मैच नहीं करेगा. इसके बाद डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन पे क्या है, रिमेंड बीसीसीआई. इट इज अंडरस्टूड दैट रिमेंड द बीसीसीआई, ये भी नहीं होगा. सो दैट्स मीन इट इज क्लियर टू अस, जो डिस्पाइट ऑप्शन ही करेक्ट होगा. दैट्स मीन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चेक करते हैं ए, बी एंड डी. It is understood that despite the BCCI's initiative to get rid of howlers, it will not be able to use highly. इसके बाद बी, एक्सपेंसिव, हॉक आई एंड अल्ट्रा एज, अ मस्ट ऑफ DRS इन इंटरनेशनल क्रिकेट. करीम डी पे है क्या, रिमेन्ड नॉन कमिटल व्हेन आस्क्ड इफ द टेक्नोलॉजी विल यूज्ड फॉर LBW डिसीजन. सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी ए, बी एंड डी. Let's move to question number 3. Question number 3, there have been several challenges in dash the virus transmission cycle and containing the spread, reluctance in the community, attacks on health workers, delays in case detection and isolation, the changes in contact tracing. But dash with the situation during 2014 and 16, the availability of a candidate vaccine has greatly helped. Though the vaccine has not been licensed in any country, the ring vaccination strategy, where people who come into contact and infected people, as well as the contacts of those contacts, are immunized has among has की end पे gap है. that's mean last जो word होगा that should be definitely third form of the verb. तो इसमें थर्ड फॉर्म किस में है, एक में है compared में, एक में है worked में, एक में है helped में. सो कैप्चरिंग, इंटरप्टिंग, कंपेयरिंग, ये लास्ट सेंटेंस लास्ट वर्ड पे नहीं आएगा. तो दैट्स मीन लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए आइदर डी और ई और एफ. सो दैट्स मीन ए, बी, सी में से कोई एक ऑप्शन होगा. डी आंसर नहीं आएगा क्योंकि डी पे है क्या, सी, जो कंपेयरिंग नहीं होगा.
ए, बी और सी के बीच में ही कोई ऑप्शन होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स चेक। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या, कैप्चरिंग। The challenges there have been several challenges in capturing the virus transmission. Capturing the virus transmission तो हो नहीं सकता, वायरस को क्या कोई कैप्चर करते हैं, कैप्चर ट्रांसमिशन साइकिल, तो ये तो कैप्चरिंग वाली ऑप्शन तो आएगा नहीं। दैट्स मीन ए जो है ये कट गया, एलिमिनेट हो गया। बी, सी, इधर बी दोनों में है, तो सी और डी इसमें हमें चेक करना है। तो बी पे क्या है, इंटरप्टिंग। देयर हैव बीन सेवरल चैलेंजेस इन इंटरप्टिंग द वायरस ट्रांसमिशन साइकिल इन कंटेनिंग द स्प्रेड रिलैक्टेंस इन द कम्युनिटी, अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, डिले इन केस डिटेक्शन एंड आइसोलेशन, द चैलेंजेस इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। बट इसके बाद देखो बी के बाद है क्या, सी ऑप्शन पे है कंपेयरिंग, और डी ऑप्शन पे है क्या, दैट इज कंपेयर्ड। सो देखो, बट कंपेयरिंग विद द सिचुएशन, ये तो हम बोलते नहीं है, जब हम कंपेयर करते हैं 2014 एंड 16, तो इट शुड बी डेफिनेटली कंपेयर्ड। जैसे हम बोलते हैं ना, एज कंपेयर्ड एज अ ईयर, तो कंपेयरिंग विद द सिचुएशन नहीं होता है, कंपेयर्ड विद द सिचुएशन। सो दैट्स मीन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों मैच हो गया। और एफ का भी देखते हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट वैक्सीन हैज ग्रेटली हेल्प्ड, दो द वैक्सीन हैज नॉट बीन लाइसेंस्ड इन द कंट्री, इन एनी कंट्री, द रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी वेयर पीपल हु कम इनटू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल एज वेल एज द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज कॉन्टैक्ट आर इम्यूनाइज्ड हैज, एफ में क्या है, हेल्प्ड, इम्यूनाइज्ड हैज हेल्प्ड। सो दैट्स मीन बी, D and F, these will be the correct option. So our answer will be C. Let's move to question number 4. A single imported case of Ebola in Goma, a city in Congo with 2 million people and with the international airport bordering Rwanda, served as a dash to finally declare a global emergency. Surprisingly, the spread to neighboring Uganda last month did not seem to change the way the WHO dashed the situation. Even when handful of Ebola cases were confirmed in Uganda, all infected people had travelled from Congo and there had been no local transmission to spread within Uganda, one of the criteria used by WHO to assess if an outbreak is a global emergency. This is the 5th time that the WHO has dashed a global emergency. So first option, the single imported case of Ebola in Goma. फर्स्ट ऑप्शन वी गेट, दैट इज ए में है कैटलिस्ट, बी 2 टाइम रिपीट हुआ है मतलब सेकंड है ट्रिगर, और डी पे है क्या, असिस्ट। सो हमें ऑप्शन देखना है जिसमें कौन सी ऑप्शन होगा। इसमें देखो कैटलिस्ट मतलब होता है कि समथिंग विच एड्स इन एन इवेंट, मतलब कैटलिस्ट होते हैं कि कोई भी चीज को ना जो इनहेंस करते हैं, इनकरेज करते हैं या बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। सो अ सिंगल इंपोर्टेड केस ऑफ इबोला इन गोमा, गोमा जगह का नाम है, सिटी इन कॉन्गो, 2 million people and with an international airport bordering Rwanda served as a, डेफिनेटली कैटलिस्ट ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, डैश देखो बी ऑप्शन पे क्या है, ट्रिगर टू फाइनली डिक्लेयर ग्लोबल इमरजेंसी। ट्रिगर क्या, टारगेट करना, to finally declared a global emergency. Surprisingly, the spread of neighboring Uganda, that's mean बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, मतलब बी जो है ये करेक्ट होगा। जस्ट वी हैव टू फॉलो सी एंड डी, ई एंड एफ। सी पे है असिस्ट और डी पे भी है, सी पे है एक्सेस और डी पे है एसेस, एक्सेस करना और एसेस करना। सो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें क्या देखना है, एसेस, एसेस का मतलब होता है क्या, जो इवैल्यूएशन करना, एसेस होता है क्या, इवैल्यूएशन, ठीक है। एसेस मीन्स दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब होता है जो चीज हुआ है उसको दोबारा देखना, जो क्या चीज हुआ है। और एक्सेस का मतलब होता है क्या, अवेलेबिलिटी। एक्सेस होता है क्या, अवेलेबिलिटी। सो नाउ विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एक्सेस होगा या एसेस होगा। देखो WHO
डैश द सिचुएशन, सिचुएशन को इवेल्युएशन किया, जो वाई दे आर अफेक्टेड बाय इबोला, दैट्स मीन एसएस वाली ऑप्शन जो है ये बेटर ऑप्शन होगा। सो डेफिनेटली लास्ट में क्या है, एफ है। एफ है क्या, डिक्लेयर्ड। अब देखो दिस इज 5th टाइम दैट हु हैज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल इमरजेंसी, हु क्या किया, ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी definitely C, that is B, D and F. Trigger, assessed and declared. Next question, question number 5th. After being dash criticized of haulers by the umpires of domestic cricket, the board of control of cricket in India BCCI has decided to dash technological assistant for Ranji Trophy knockouts this season. The idea is to dash as many haulers as possible, and if we can achieve that, then we can go ahead with it, and that is why we are introducing it only for knockout stages and for coming season. Saba Karim, BCCI General Manager Cricket Operations, told the media. जितना तक मुझे लग रहा है मीनिंग शायद क्लियर ही है। आफ्टर बीइंग डैश, सो आफ्टर बीइंग डैश क्रिटिसाइज मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज के बाद फॉर हाउलर्स बाय द अंपायर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में हाउलर्स के द्वारा जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू डैश टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट फॉर रणजी ट्रॉफी नॉकआउट्स दिस सीजन। सो इसमें भी देखो ऑप्शंस हमारे पास है ए 2 times B एंड 1 है D। एक में तो है A, देन 2 times B है, देन है D। तो A पे है सीवियर और B पे है क्या, सीवियरली। सो आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज इसमें क्या है, क्रिटिसाइज इज द वर्ब। तो क्रिटिसाइज किस तरीके से हुआ था, सीवियरली क्रिटिसाइज हुआ था। तो सीवियर और सीवियरली में फर्क क्या है, सीवियर है एडजेक्टिव और सीवियरली क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है दिस इज द क्वालिटी ऑफ verb, we can say qualifier of verb. तो how the criticized was, criticized कैसा था, criticized severely था। so that's mean B आंसर होना ही चाहिए, severely होना ही चाहिए। Now we have to see that is C होगा या D होगा। C पे है enhance, D पे है develop। तो अब देखो severely criticized for howlers by umpires in domestic cricket, the board of control for cricket in India BCCI has decided to enhance technological assistant development। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट तो नहीं होगा, डेवलपमेंट की बात इसमें नहीं हुआ, इसमें इंक्रीज करने की बात हो रहा है। So that's why enhance technological assistant for Ranji Trophy knockouts this season. And the idea then होगा क्या, E ऑप्शन पे देखो eradicate. This idea is to eradicate as many howlers as possible. So that's mean our answer will be B, C and E. So option will be B. That is B, C and E. So these are called triple fillers for IBPS exams. These are not so tough, my dear students. मुझे जितना तक लगा जो आप लोग ये कर पाओगे, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी रहे और थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉलेज रहे ना, ये हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शंस को देखकर एंड गैप्स को देखकर यू कैन इजीली फिल दिस वर्ड। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो इसको ओमिट नहीं करना, इसको ट्राई करना करने की, बट इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ होती है अच्छी तरीके से। सो दिस आर नॉट सो डिफिकल्ट। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Our question number 6, that is direction 6 to 10, given below are 6 statements A, B, C, D, E and F, which when arranged in correct order form a coherent and meaningful paragraph. The sentence marked as D is fixed and would fit in the 4th position. Means A, B, C, D option, D sentence जो we get D sentence will be in 4th option. That's mean ये D जो है ये 4th पे होगा। And then answer the questions below. तो अब D को 4th पे रख के A, B, C, E, F को हमें proper arrange करना होगा and we have to make a meaningful and coherent paragraph. तो स्टेटमेंट वाइज पहले चेक करते हैं। जो डी हमें ऑलरेडी पता चल गया, जो डी जो है ये 4th पोजीशन पे ही आएगा, तो इसके लिए पहले ही हम 4th कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू लोकेट विच विल बी द फर्स्ट सेंटेंस।
देखो फर्स्ट ऑप्शन सेंटेंस हमारे पास है दैट इज क्विटिंग द करंट पोस्ट, क्विट करना, छोड़ना, द करंट पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग अनदर पार्टी, अनदर पार्टी को ज्वाइन करने से पहले करंट पोस्ट को क्विट करना इज अ लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। ये क्या है? लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। डिफेक्शन इज कंडेमनेबल स्पेशली इफ इट इज टू ब्रिंग डाउन वन रिजाइम टू फॉर्म अनदर। सो देखो अगर इस सेंटेंस को हमें लगे जो है इसको हम फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, दिट विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज इन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज रिलेटेड विथ टॉपिक। सो दिस इज नॉट द टॉपिक, दिस इज इट इज क्लियर टू अस। ये आइदर कंक्लूशंस पे आ सकता है या कोई सजेशंस पे आ सकता है, बट इट विल बी नॉट द टॉपिक, क्योंकि क्विटिंग द करंट पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग, सो समवन who quit the current post before joining another party, legal and moral obligation, ये जो सारी बात हो रही है इसके कोई रीजन तो होना चाहिए, कुछ तो कॉज होगा। सो पहले हमें लोकेट करना होगा जो इसका रीजन क्या है, क्योंकि दिस इज इफेक्ट, दिस इज अ कंक्लूजन। सो एट फर्स्ट वी हैव टू लोकेट व्हाट विल बी द कॉज। तो दैट्स वाई ये सेंटेंस हमें फर्स्ट में नहीं देना चाहिए। अच्छा बी सेंटेंस में है क्या? बी सेंटेंस देखो बट से शुरू हो रहा है, तो बट इज अ कंजंक्शंस और दिस इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन, बट हम we put but on that place where the statement of to statement is an adverse position. So until it is not adverse but will be not used. So that's why B option is not the correct option. B भी हम first में नहीं दे सकते। C पे देखो the Supreme Court's decision to ask the parties to the political crisis in Karnataka to maintain the status quo until it examines the questions of law involved is pragmatic and expedient. The Speaker has been asked not to decide the issue of MLA's resignation or disqualification. It is clear to us this is our topic. किसके डिसीजन किसकी है? सुप्रीम कोर्ट्स की डिसीजन है, एंड टू आस्क द पार्टीज टू द पॉलिटिकल क्राइसिस इन कर्नाटक टू मेंटेन द स्टेटस क्वो until it examines the questions of law involved and is pragmatic expedient. The speaker has been asked not to decide the issue of MLA's resignation or disqualification. So this is our topic, so that's why C will be the first sentence. So जब हमें ये पता चलेगा जो C फर्स्ट सेंटेंस हुआ है, सो डेफिनेटली डिसक्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, इसका जो क्वालिफायर है, मतलब व्हाट इज द रीजन, क्या डिसीजन लिया गया, क्या ऑर्डर पास हुआ है। सो देखो अब देखो ई जो है एफ सेंटेंस जो हमारे पास है, देखो इसमें दिया है एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड व्हेन वन ऑफ द क्वेश्चन to be decided is whether the court can give such a direction to the speaker. So that's means C option, C sentence जो है वो हमारा फर्स्ट हुआ, and F जो है that will be the second sentence. So now we have to locate which can be the third sentence, which will be the third sentence. So ये तो decision pass और orders जो है वो pass हुआ. सो अब हमें देखना है क्या जो थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा। सो इसमें देखो डिसाइडेड वेदर द कोर्ट हैज डायरेक्शन टू द स्पीकर, इट नाउ ट्रांसफर्स दैट लेजिस्लेचर्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिजाइनिंग बाय क्लेमिंग दैट दे हैव इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। ये क्या है? ये ऑर्डर पे ये दिया गया है। इट नाउ ट्रांसफर्स दैट लेजिस्लेचर्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिजाइनिंग बाय क्लेमिंग दैट दे हैव इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। ये हुआ हमारा थर्ड सेंटेंस। फोर्थ इज ऑलरेडी गिवन, इट वॉज आर्ग्यूड इन द कोर्ट, मतलब इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ था। द रेबल एमएलएज आर ट्राइंग टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन बाय टेंडरिंग रेजिग्नेशन एंड दिस इज अस्टॉन्डिंग मतलब सरप्राइजिंग एज अ पेनाल्टी फॉर डिफेक्शन ऑफ लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफिस। फोर्थ सेंटेंस हो गया। अब देन फिफ्थ कौन सा होगा? अब इसके अगेंस्ट में क्या है? क्विटिंग द करंट पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग the another party is legal and moral obligation. Defection is condemnable, especially if it is to bring down one regime from other. So A जो है that will be the fifth sentence. A fifth. Then है but politicians cannot be tied. This will be the sixth sentence. So that means our correct order, which will be our correct order? C, then F, then E, then D, इसके बाद A and then B. C, F, E, D, A, B. So now we have to put the questions. Which of the following will be the last sentence after rearrangement?
तो लास्ट सेंटेंस, which will be the last sentence? Last sentence was B, so that's why answer will be C. B will be the last sentence. Let's move to question number 7th. Question number 7th हमें पूछा गया which of the following form to consecutive statement after rearrangement? Consecutive statement मतलब अब our rearrangement हमारा कैसा था? C, then था F, then E, then D, A, B. So C, that is the first sentence. F, that will be the second sentence. E, that will be the third sentence. D जो है ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सेंटेंस, और A that is the fifth sentence, और B जो है that will be the sixth sentence. So consecutive statement हमें पूछा है. Consecutive statement मतलब either CF या FE या ED या DA या AB. So एक भी ऑप्शन इसमें है नहीं. AD दिया हुआ है बट हमें AD नहीं चाहिए, हमें DA चाहिए. So therefore none of this आंसर हमारा होगा. कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट मतलब होता है कि जो कौन सी दोनों एक साथ आ रहा है, जैसे सी एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है या ई डी आ रहा है या डी ए आ रहा है या ए बी आ रहा है. सो ऑप्शन इज नॉट हियर, देयरफॉर आवर आंसर विल बी नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will be the first sentence after rearrangement? फर्स्ट सेंटेंस हमने कौन सा किए थे? सी किए थे, क्योंकि सी हमारा फर्स्ट था. देन वी गेट एफ एंड देन वी गेट ई, and after that it was fourth, that is D, and then quitting, that is A, fifth sentence, and B tha kya, sixth sentence. So that's why first sentence will be C, so answer will be B. And next question, that is question number 9, which will be the second sentence? second sentence हमारा था क्या? F था. सेकेंड सेंटेंस हमारा एफ था, बिकॉज सी हमने फर्स्ट, सी इज द फर्स्ट सेंटेंस, एफ सेकेंड सेंटेंस, ई थर्ड सेंटेंस, डी फोर्थ सेंटेंस. अच्छा, ए जो है दैट इज द फिफ्थ सेंटेंस, और बी जो है दैट इज द सिक्स्थ सेंटेंस. सो दैट्स मीन सेकेंड सेंटेंस विल बी एफ. सो एफ मीन्स आंसर विल बी ए. Question number 10, which will be following the fifth sentence after rearrangement? फिफ्थ सेंटेंस हमने कौन सा किए थे, और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं. सी दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस. अच्छा, देन एफ जो है दैट इज द सेकेंड सेंटेंस. सॉरी, इट इज थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. यू कैन सी द बैक स्लाइड, इसमें आपको फुल सेंटेंस मिल जाएगा. अच्छा, ई जो है दैट इज द थर्ड सेंटेंस, देन फोर्थ डी, और फिफ्थ हमारा था क्या? ए, और सिक्स था हमारा बी. So that's why which will be the fifth sentence? Fifth sentence is A, so that's why our answer will be D. So these are the 5 questions based on parajumble. This is definitely new pattern of parajumble and new pattern of fill in the blanks. So these are not so difficult. मुझे तो लगता है जो थोड़ा सा इजी है, जस्ट इसको ध्यान से पढ़िएगा. एंड जो की वर्ड्स है इट शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू, जैसे कि बट, क्विटिंग, इस टाइप ऑफ वर्ड्स, इट, नाउ, दिस, दैट, इस टाइप ऑफ सेंटेंस नेवर बी द फर्स्ट सेंटेंस. सो दिस, दैट विल बी द मिडिल सेंटेंस, कैन बी द मिडिल सेंटेंस, एंड इवेंचुअली फाइनली एट लास्ट दिस विल बी द लास्ट सेंटेंस. सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड व्हाट विल बी द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. अगर ये दोनों पता चल जाए तो पैराजम्बल not so difficult. So this type of questions you can get a lot of questions you can get from our ibpsguide.com, our site me, and you can follow our description box also. And students, if you wish, you can purchase our mock test, and where you get a different type of new pattern of questions, and all are the updated questions and related to IBPS examination. So, and I 100% sure these all questions will be very much helpful for your preparation, and it is a very in cheap price, not so costly. So just you can visit our website, that is, you can visit our site, that is ibpsguide.com, and you also can visit our e-store. Tomorrow again I will come and bring some different type of question for IBPS examination. तो अभी हमारा जो भी प्रिपरेशन चलेगा IBPS को टारगेट करके हमें प्रिपरेशन हमारा चलेगा, एंड
डेफिनेटली क्लरिकल और पीओ दोनों को ही हम टारगेट करके ही चलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विथ अस. You will get lot of different variety type of questions and different type of vocabs also. Just stay tuned with us and keep your practice. Goodbye. Have a nice day.